जय अवधूत। સદગુરુદેવની અનન્ય કૃપા તમામ નાથ ભક્તો પર બહારની વરસી રહી છે અને આ મહામારી દરમિયાન જ્ઞાન ભક્તિની પાવની વિચાર ગંગાનો લાભ સૌને ફેસબુક અને યુટ્યુબના માધ્યમે મળી રહ્યો છે। 15 જૂન સોમવારે શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનું પૂજ્યશ્રીએ અનાવરણ કર્યું હતું। તો આજે પણ પૂજ્યશ્રીની નમ્ર વિનંતી છે કે શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થના નવા આંકડા દર્શન કરાવે। આભાર। આપ સૌ વિદિત છો કે લોકડાઉનને કારણે મુંબઈમાં પ્રેસ બંધ હોવાને કારણે પીડીએફ સ્વરૂપે વિચાર ગંગામાં શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ પ્રસિદ્ધ થાય છે। જો કોઈ કારણસર આપને ન મળ્યું હોય તો આપના વોલેન્ટિયર મિત્ર અથવા અમારો સંપર્ક સાધી શકો છો। પીડીએફ વોટ્સએપ દ્વારા આપને પહોંચતી કરવામાં આવશે। બીજી એક ખાસ જાહેરાત કે શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનો આવતો અંક ગુરુ પૂર્ણિમા વિશેષાંક છે, માટે ગુરુ વંદના માટેની એડ આપ અમને આપી શકો છો। એડ વિશેની માહિતી મેળવવા માટે આપ ગ્રાહક હેલ્પલાઇન નંબર 9925 191 398 પર સંપર્ક સાધી શકો છો। માટે સત્વરે આપની એડ નોંધાવી દેશે। જે નાથ ભક્તોએ ભંડારા માટે પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે તેમનો મા બિમલા જનસેવા ટ્રસ્ટ અને મા બિમલા અચૂક અન્ન ક્ષેત્ર આભાર વ્યક્ત કરે છે। પ્રવચન બાદ શ્રી દાતાશ્રીઓનું યોગદાન જણાવીને આશીર્વાદ આપશે। સરકારશ્રીએ અનલોક 1ના નિયમો વ્યક્ત કર્યા છે, તેના અનુસંધાને નવનાથ ધામમાં દર્શન માટેની નિયમાવલી તૈયાર કરવામાં આવી છે। આ નિયમાવલી વિચાર ગંગા તેમજ શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થમાં પણ પ્રસિદ્ધ થયેલ છે। તો તમામ નાથ ભક્તોએ તે વાંચીને સમજીને અને પૂજ્યશ્રીની આજ્ઞા અનુસાર જ નવનાથ ધામમાં આવવાનું રહેશે અને નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે। ગુરુવારે દર્શન માટે બપોરે 3:30 થી સાંજે 4:30 સુધીના નિયત સમય દરમિયાન આવવાનું રહેશે। ભેટ સોગાદ લાવવાની નથી। 65 વર્ષ કે તેથી વધુની ઉંમરની વ્યક્તિ, સગર્ભા સ્ત્રી અને 10 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો અને શારીરિક રીતે અસ્વસ્થ હોય તેવા ભક્તો દર્શન માટે આવવાનું નથી। દર્શન માટે આવનાર દરેક ભક્તોએ ફરજિયાત માસ્ક પહેરવાનું છે અને પરિસરમાં ક્યાંય પણ માસ્ક કરવાનું નથી। નવનાથ ધામના પરિસરમાં પ્રવેશ કરતી વખતે શૌચાલયમાં જઈને સાબુથી હાથ પગ ધોઈને દર્શન માટે પ્રવેશ કરવાનો રહેશે। પરિસરમાં પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું આપણે સૌ કોઈએ પાલન કરવાનું રહેશે। દર્શન વખતે પણ 6 ફૂટના અંતરે દોરેલા રાઉન્ડ સર્કલ પર જ ઊભા રહેવું। આ ઉપરાંત પૂજ્યશ્રીએ આપેલ દરેક નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે। હવે પૂજ્યશ્રીની નમ્ર વિનંતી છે આજના ગુરુવારે પોતાની દિવ્ય વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે। જય आदिनाथाय विद्महे चिदब्रह्मज्योति स्वरूपाय धीमहि तन्नो आदिगुरु प्रचोदयात्। ॐ चैतन्य आदिनाथाय नमः। जटाटविङ्गलं जलत् प्रवाहपावितस्थले गले यलम्बिता भुजङ्गतुङ्ग मालिका। डमक 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 निनादडं ममं मर्यं चकार चण्डताण्डवम्
तनोतु न शिव शिवम् तृणरविन्दुचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवृत्तिक सदा सदा शिवं भजाम्यहं भजाम्यहं भजाम्यहम्। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सदगुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। बोलिए आदिनाथ शंकर भगवान की जय। इष्ट देवता नवनाथ महाराज की जय। सद्गुरु सानेनाथ महाराज की जय। यही हम सबके हृदय में शिव समान कल्याणकारी परमेश्वर स्वरूप सदा हितकारी और हमारे सभी के जीवन के उद्धार करने वाले हमारे हृदय में विराजमान ऐसे आदि गुरु सद्गुरु के चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं एवं जो ज्ञान स्वरूप है, जो शक्ति स्वरूप है और जिनकी कृपा से सृष्टि के समस्त जीवों के दुख दूर हो जाते हैं, ऐसे भगवान आदिनाथ शंकर के चरणों में गुरु प्रदोष के पावन पर्व हेतु मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। साथ साथ हमारे जो भी नाथ भक्त पिछले कई समय से फेसबुक के माध्यम से गुरुवार की विचार गंगा का स्मरण कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से ही गुरुवार के दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथपंथी भक्तों को एवं धर्मप्रेमी भाई बहनों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। सदा शिवम भजाम्यहम्, यानी यह सृष्टि में जो कल्याणकारी तत्व है, यह सृष्टि जिनकी कृपा दृष्टि के आधार पर ही अपने जीवन में सुख प्राप्त कर रही है, आनंद प्राप्त कर रही है और मोक्ष के पथ पर प्रयाण कर रही है, ऐसे भगवान सदाशिव जिन्हें हम महादेव के नाम से जानते हैं। महादेव जिन्हें कोई शंकर कहता है, जिन्हें कोई मृत्युंजय कहता है, हमारा नाथ संप्रदाय जिनको आदिनाथ के नाम से सदा स्मरण करता है और वेदों ने जिसे शिव नाम दिया है, ऐसे भगवान आदिनाथ महादेव जो प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए अपनी कल्याणकारी कृपा हमेशा बरसाते थे। शिव शब्द का अर्थ नित्य कल्याण करना, सदा कल्याण करना, हमेशा हमेशा के लिए यह देह से मुक्त करना और सदा के लिए आत्मा को मोक्ष प्रदान करना, ऐसा माना गया है। वेदों ने शिव शब्द की व्याख्या परम कल्याणकारी यह भावार्थ में सदा समझाई है।
इसलिए जब भी हम कोई शुभ उद्देश्य से अपनी पूजा, अपने व्रत या अपने कोई भी नैमित्तिक कार्य करें, तो वह शुभ उद्देश्य वाले कार्य को कल्याणकारी यानी शिव कार्य माना गया है। और इसलिए तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, यह मन तू सदा दूसरों के कल्याण की भावना कर, यानी कल्याण करना जिसका अर्थ होता है शिव भाव। और इसीलिए आप देखिए, इस सृष्टि के जड़ पदार्थ, चेतन पदार्थ जितने भी है, प्रकृति ने जिन पदार्थों का निर्माण किया है वो जड़ और चेतन या मानव पदार्थ, पुरुष, स्त्री, सभी, इन सभी में आत्म तत्व जो छिपा हुआ है वो कल्याणकारी है। और इसलिए आप देखिए कि चंद्र के अंदर की शीतलता जो हमें शीतलता प्रदान करती है, आयुर्वेद जिसे औषध मानता है, और चंद्र की किरणों में रहा हुआ औषध और शीतलता हमारे मानव शरीर को, वनस्पतियों को तंदुरुस्त कर देती है। इसलिए शिव की चंद्र के अंदर की शीतलता में जो रोग दूर करने का जो औषध तत्व है उसे शिव तत्व माना गया है, और इसीलिए वह पूजनीय है। सूर्य के अंदर के जो किरण है वो वैज्ञानिक रूप से, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से या आयुर्वेद की दृष्टि से परम तंदुरुस्ती वर्धक है, परम शक्तिवर्धक है। हमारे शरीर के नए कोषों का वो निर्माण कर देते हैं, वनस्पति के नए कोषों का वो पोषण करते हैं, हमें हमेशा के लिए प्राणवायु प्रदान करते हैं। इसीलिए सूर्य की तेज को, सूर्य की किरणों को भी शिव तत्व माना गया है। यानी सूर्य में अगर कोई शिव कल्याणकारी तत्व है तो सूर्य का तेज, सूर्य की किरण है, और इसलिए सूर्य पूजनीय है। ठीक वैसे आप देखिए कि पंचमहाभूत में जो जल तत्व है, वह जल तत्व जिसे पीने से हमारी प्यास बुझ जाती है, जिसे पीने से हमारा लहू बनता है, जिसे पीने से हमारे शरीर में विविध प्रकार के रस बनते हैं, जिसे पीने से हमारे शरीर को सिंचन और जीवन प्राप्त होता है, वनस्पतियों में फसल पैदा हो जाती है, और जितनी भी गंदगियां है वो पदार्थ की गंदगियां भी जल से स्वच्छ हो जाती है। और इसलिए जल के अंदर जो सिंचन का तत्व है, जो पोषक का तत्व है, उस तत्व को भी शिव तत्व माना गया है। अग्नि के अंदर का दाहक तत्व जिसका उपयोग करते हुए हम साधनों में शक्ति निर्माण कर देते हैं, हम पदार्थों में ऊर्जा पैदा कर देते हैं, अग्नि में पकाया हुआ पदार्थ ही हम खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे अग्नि में छिपा हुआ जो कल्याणकारी दाहक तत्व है, तेज तत्व है, उसे भी शिव तत्व माना गया है। वायु में जो प्राणवायु छिपा है, और अगर अपनी नाक बंद कर ले और वायु हमारे शरीर में न जाए तो कुछ ही क्षणों में हमारा जीवन मृत्यु में परिवर्तित हो जाता है। यानी वायु में जो ऑक्सीजन है, जो प्राण तत्व है, जिसके बिना सृष्टि के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकते, ऐसे
प्राणवायु तत्व को भी शिव तत्व माना है। पशुओं में आप देखिए, ये गाय स्वयं कल्पवृक्ष है, वंदे गो मातरम, जिसे माता स्वरूप माना गया। गाय के अंदर से जितने भी पदार्थ निर्माण होते हैं उससे मनुष्य के घर की आजीविका चल जाती है, मनुष्य के शरीर का पोषण हो जाता है, हमें सभी प्रकार के रोगों से वो मुक्त रखते हैं। गाय का दूध, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय स्वयं, आप देखिए। तो गाय के अंदर का जो यह तत्व है, कल्याणकारी तत्व, उसे शिव तत्व माना गया है। वैसे सभी प्राणियों में कुछ ना कुछ ऐसे तत्व बसे हैं जो तत्व मानव जीवन के आधार के लिए बहुत ही उपयोगी है। केवल गाय ही नहीं, सभी प्राणी अपने जीवन का बलिदान मनुष्य जीवन के लिए दे देते हैं। कोई प्राणी अपना चमड़ा दे देता है, कोई प्राणी अपने अंदर के तत्व देते हैं जिससे दवाई बन जाती है, कई प्राणी खुद भक्ष बन जाते हैं जिसे खा के मनुष्य अपना जीवन टिका लेते हैं। अब आप देखिए कि ऐसे मनुष्य के जीवन को जहां आधार मिले, ऐसा जहां जीवन बन जाए, ऐसे जहां तत्व बन जाए, वह सभी तत्व कल्याणकारी है। इसीलिए पशुओं को भी और पशुओं के अंदर रहे सभी तत्वों को भी शिव तत्व माना गया है। और अब बाकी बात रही मनुष्य की, कि मनुष्य का शरीर तो किसी को काम नहीं लग सकता, मनुष्य का जीवन सिर्फ अपने लिए ही होता है। कई बार मनुष्य अपना स्वार्थमय जीवन जीने के लिए दूसरों के जीवन को संकट में डाल देता है, पूरी प्रकृति को संकट में डाल देता है। फिर भी मनुष्य के अंदर के कल्याणकारी विचार, मनुष्य की शुद्ध बुद्धि, मनुष्य की पवित्र दृष्टि, मनुष्य के अंदर का आध्यात्मिक ज्ञान, जिसे शिव तत्व माना गया है। यानी मनुष्य अपने विचारों से, अपने उद्देश्यों से, अपने नए आयोजनों से, अपनी वैचारिक ऊर्जा से अगर किसी का भला कर दे तो वह विचार भी उसके तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कल्याणकारी है, शिव स्वरूपी है। और इसलिए आप देखिए कि सृष्टि के जड़, चेतन और मानवीय सभी पदार्थों में केवल कोई आत्म तत्व बचता है तो वह आत्म तत्व को शिव तत्व माना गया है। वेदों ने भी कल्याणकारी भावनाओं को शिव भावना, शिव उद्देश्य, शिव संकल्प माना है। और इसीलिए हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि भगवान शिव का चरित्र, भगवान शिव की लीलाएं, भगवान शिव का नाम विश्व में जड़ चेतन सभी पदार्थों में बसा है। ध्वनि के रूप में बसा है, सुगंध के रूप में बसा है, प्रत्यक्ष आधार के स्वरूप में बसा है। जैसे पृथ्वी में भी कल्याणकारी तत्व है, प्रत्यक्ष आधार। पृथ्वी हमें इतने प्रकार के कल्याणकारी तत्व दे देती है जिसके ऊपर फसल उगा के हम खा सकते हैं। उसके अंदर की जो फलद्रुपता, यह कल्याणकारी है। हम सब सृष्टि के ऊपर अपना आधार बनाए बैठे हैं, अपना बोझ डाले हुए बैठे हैं। दिन प्रतिदिन पृथ्वी के पड़ों को हम खोदते हुए खनिज तत्व की प्राप्ति के लिए अंदर और अंदर जा रहे हैं। फिर भी धरती हमें जरूरी तत्व दे देती है, आधार दे देती है, जीवन दे देती है। और उसी लिए धरती में समाये हुए सभी तत्व, जिसे शिव तत्व माना जाता है, तो उसका एक अर्थ हो गया कि जहां से कुछ शुभ मिले
जहां से जीवन मिले, जिस उद्देश्य से समष्टि के कल्याण की भावना हो जाए, ऐसे सभी शुभ कल्याणकारी तत्वों को शिव तत्व कहा जाता है, शिव स्वरूपी तत्व कहा जाता है, या प्रत्यक्ष शिव कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सृष्टि के कण कण में शिव बसे है। सदा शिवम भजाम्यहम्, जो हर जगह पे बसा है उसे ही भजिए, जो हर जगह पे बसा है उसका ही ध्यान कीजिए, जिसका स्वरूप और रूप हर जगह पे साक्षात विराजमान है, उसकी ही पूजा कीजिए। और ऐसी पूजा करने का अवसर जिसे प्रदोष काल बोला गया। आज का दिन गुरु प्रदोष का पावन पर्व है, और प्रदोष काल का पर्व हमें शिवम भूत्वा शिवम यजेत, यानी शिवमयी होने की प्रेरणा देता है। कई बार शिवम भूत्वा शिवम यजेत का एक अर्थ निकल आता है कि शिव होके शिव को भजिए, लेकिन शिव होके शिव को कैसे भजे? कई बार मैं शिव हूं यह भाव में अहंकार भी हो सकता है। बिना परिपक्वता के, मानस की बिना परिपक्वता के अगर मैं शिव हूं यह भाव हमने लाया तो यह भाव अहंकार में हो जाए, यानी शिव हम बनेंगे, लेकिन बनने के बाद भी शिव से हम अलग रहेंगे। बनने के बाद भी हमारे अंदर का अहंकार शिव से जुड़ने नहीं देगा। हम मन के विचारों से शिव बने रहेंगे, लेकिन जहां एकरूप होना है वहां हम शिवत्व नहीं हो पाए। इसलिए शिव होके शिव को भजने से भी ज्यादा शिवमय होके शिव को भजा जाए। गुरुमय होके शिष्य गुरुमय बन के गुरु को भजे, भक्त प्रभुमय होके प्रभु को भजे, वैसे ही साधक शिवमय बन के शिव को भजे। जैसे पत्नी पतिमय बन जाती है तो वो प्रतिव्रता कहलाती है, ठीक वैसे ही हमारी कल्पनाएं, हमारी भावनाएं, हमारा मन, हमारी इच्छाएं हम शिवमय कर दे और शिव को भजे तो मैं मानता हूं सृष्टि के सभी पदार्थों में या हमारे भीतर भी हमें शिव शिव और शिव की कल्याणकारी ध्वनि हमेशा हमेशा के लिए सुनाएगी। इसलिए प्रदोष काल का ये व्रत शिवम भूत्वा शिवम यजेत हमें शिवमय होके शिव की पूजा करना सिखाता है। प्रदोष काल के लिए कई भक्त प्रदोष व्रत करते हैं, और मैं तो हर महीने का एक प्रदोष नित्य नियम से कर लेता हूं। प्रदोष करना मनुष्य जीवन के लिए बहुत जरूरी है। प्रदोष काल में आराधना करना मनुष्य जीवन के उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। और प्रदोष काल में जो भी हम पूजा कर्म करें वो पूजा कर्म में समष्टि के कल्याण की भावना करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए प्रदोष काल की पूजा को वैज्ञानिक पूजा बोला गया। अभी हम सोचेंगे कि हमारे संस्कृति में तो कई पूजाएं लिखी है, प्रदोष काल की पूजा को आप क्यों वैज्ञानिक मानते हैं? प्रदोष काल की पूजा इसलिए वैज्ञानिक मानी जाती है कि प्रदोष काल की पूजा नियत समय पे की जाती है। प्रदोष काल की पूजा में प्रकृति का अनुसंधान करते हुए पूजा की जाती है।
और हमारी पूरी सृष्टि का जीवन सूर्य के उगने से और सूर्य के आथमने से सूर्य के अस्त होने तक हमारा जीवन होता है। हमारे जीवन की कोई भी प्रक्रियाएं सूर्य अस्त के बाद होती ही नहीं। सूर्य उगा तब से हमारा जीवन शुरू होता, हमारा दिन शुरू होता, और सूर्य जब अस्त होता है तब हमारे जीवन की सभी क्रियाएं विराम की ओर चली जाती। यानी कर्म करने के लिए, कर्तव्य करने के लिए, हमेशा के लिए कर्म को सातत्य जैसे का वैसे बना रहे, इसलिए मनुष्य जीवन सूर्य उगे और सूर्य अस्त हो जाए वहां तक ही क्रियाओं की प्रथाओं को माना गया। लेकिन जैसे सूर्य अस्त हो जाए वैसे हमारे जीवन की दिनचर्या हम धीरे धीरे बंद करने लगते हैं, हम विश्राम की ओर चले जाते हैं, हम हमारे दिन को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म की कई पूजाएं सूर्य उगे और सूर्य अस्त हो जाए वहां तक ही सीमित की गई। बहुत कम व्रत ऐसे हैं जो चंद्र के प्रकाश में किए जाते हैं। आप यज्ञ ले लो, याग ले लो, कितने भी कर्मकांड ले लो, लेकिन सूर्य उगे और सूर्य अस्त हो जाए उसके पहले उसे समाप्त कर देना होता है। और कई कई जगहों में तो रात्रि भोजन भी निषेध कर दिया जाता है। तो आप सोचिए कि चाहे विज्ञान हो, चाहे समाज हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे धर्म हो या भौतिक जीवन हो, सभी जीवन की क्रियाएं सूर्य उगने और सूर्य के अस्त होने तक की होती है, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष प्रमाण है जीवन का। सूर्य के किरण प्रत्यक्ष प्रमाण है जीवन को उत्थान ले सके ऐसे तत्वों से बने हुए सूर्य की किरण, कि जिससे हमारा जीवन उत्थान हो सके। सूर्य के किरणों में तेज होता है, सूर्य के किरणों में शरीर को शक्तिवर्धक वैज्ञानिक रूप से जितने भी तत्व है उसमें मिल जाते हैं, और इसीलिए सूर्य को प्रकाश का देवता बोला गया है, सूर्य को तेज का देवता बोला गया है। और जहां सूर्य उगे और सूर्यास्त में वहां की जो ये पूजा है, यह पूजा वैज्ञानिक रूप से हमारे मन को हमेशा हमेशा के लिए जागृति की ओर ले जाती है। आज हमारे पास मन तो है, लेकिन कौन कह सकता है कि हमारा मन जागृत है? हमारा मन सबके पास है। आप जब से आप उठे रात तक सो जाए उसके बाद भी मन तो चालू रहता है। मन का चलते रहना ये जागृति नहीं है। मन की जागृति का अर्थ होता है कि मन सतर्क हो जाना, अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क हो जाना, अपनी जितनी भी भावना है वो शुभ भावना के प्रति सतर्क हो जाना, समष्टि के कल्याण के लिए मन सतर्क हो जाना, अपने धर्म की जागृति के लिए धर्म को संभालने के लिए, धर्म का परित्राण करने के लिए मन का जागृत हो जाना, जिसे कहा गया है मन की जागृति। यानी मन हमारे सबके पास है, लेकिन आप देखिए क्या हमारे मन जागृत है? आज हमारे भारत भर में वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। वृद्धाश्रम में आप जाइए, मैं भी कई बार गया हूं। वहां जाने के बाद आप वृद्धों से बैठिए, उनसे बात करिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उनके मन की पीड़ा को आप जानेंगे तो पता चलेगा कि जो वृद्ध वृद्धाश्रम में गए हैं उसमें से 90% वृद्धों के घर में अपने पुत्र सुखी संपन्न और पैसे वाले, सुखी संपन्न और पैसे वाले जितने भी होते हैं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाए, उनका जब कुछ सेवा भाव करना हो तो वो नहीं कर पाते, और पैसे देके वो वृद्धाश्रम में देते थे। यानी ज्यादातर वृद्ध
पैसे वाले घर से होते हैं। अभी आप सोचिए कि आप पैसे तो कमा रहे हैं, अच्छी खासी प्रगति कर रहे हैं, जीवन में तरक्कियां हो रही हैं, लेकिन मुझे बताइए, अगर आप अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकते तो यह मन जागरूक है ऐसा हम कैसे कह सकते? यानी मन है लेकिन मरा हुआ है। जहां मन होता है वहां जीवन अमर हो जाता है। यानी मन है और मरा हुआ है। जहां अपने माँ बाप काम नहीं करते, पैसे दे के दूसरी जगह रख देते हैं, ऐसे मन मरे हुए मन है। अब कई जगह पे आप देखिए कि भ्रष्टाचार होते हैं, कई जगह एडमिशन लेने के लिए पैसे देने पड़ते, नौकरी लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, बिना पैसे कुछ काम होता ही नहीं, पैसों से भ्रष्टाचार होता है। पढ़ लिख के कोई डॉक्टर बन जाए, पढ़ लिख के कोई अधिकारी बन जाए, फिर भी ज्यादा से ज्यादा बिन जरूरी, जिससे जरूरत हो उससे ज्यादा पैसों सामने से ले लेना, तो ऐसे मन को कैसे कहा जाए मन जागृत? अभी आप देखिए अखबारों में कई किस्से आते हैं कि अस्पताल में गए, ज्यादा से ज्यादा पैसे ले लिए, उतने इलाज के पैसे नहीं, उससे ज्यादा लिए जाते हैं। नौकरी देने के लिए पैसे की लांच ली जाती है और ली जाती है। यानी इतने हम पढ़ लिख के आगे बढ़े, हमारी बुद्धि का स्तर आगे बढ़ गया, लेकिन हमारा मन जागरूक नहीं, हमारा मन मरा हुआ है। और जहां मरा हुआ मन है वहां ही हम दूसरों का दमन कर लेते। कोई व्यापारी हो तो ज्यादा नफा कमाने के लिए गलत वस्तुएं दे दे, डुप्लीकेट वस्तुएं दे दे, वस्तुओं में कुछ मिश्रण करके दे दिया जाए। कितने भी खाने के पदार्थ हैं उसमें मिश्रण हो जाता है, मिलावटी दवाएं हमें आज मिल जाती है पैसे कमाने के लिए। यानी बुद्धि तो है लेकिन मन कहां जागरूक? और जहां दूसरों को हानि हो, दूसरों का जहां दमन किया जाए, ऐसे भ्रष्टाचार जहां होते हैं वहां मैं नहीं मानता कि मन जागरूक हो, वहां मन मरा हुआ है। कई शास्त्र जानने वाले जितने भी पंडित हैं वो भी अपना धंधा चलाने के लिए कुछ नए नए कर्मकांड सौंप देते हैं। किसी को दुख को अपनी कुंडली दिखाने के लिए, कुछ बिन जरूरी, जहां कुछ जरूरी नहीं है ऐसे फॉल्ट निकाल के नए नए कर्मकांड करवा देते हैं। उसके पीछे उद्देश्य होता है पैसा ले लेना। यानी बुद्धि तो है लेकिन विद्वान होने के बाद भी मन कहां जागरूक है? मन मरा हुआ है। अब जहां हम मरे हुए मन से हमारे जीवन के लिए कुछ अच्छा करने के लिए चले जाए, वहां दूसरों का बुरा हो जाता है। इसलिए प्रदोष काल की पूजा मन को जागृत करने की पूजा है, मन को जीवन बनाने की पूजा है, मन को कल्याणकारी अवस्था में ले जाने की जो पूजा है वो है प्रदोष काल की पूजा। और प्रदोष काल में एक योगिक क्रिया सहज भाव से हो जाती है जिसे कहते हैं सुषुम्ना नाली का जागृत हो जाना। हमारी एक नाली है सूर्य नाली, एक नाली है चंद्र नाली, एक नाली है ईडा, एक नाली है पिंगला। लेकिन ये दोनों के बाद भी एक नाली है जो ये दोनों नालियों के बीच में से चली जाती है, जिस नाली को बोला जाता है सुषुम्ना नाली। सुषुम्ना का जागृत होना कुंडली का उत्थान है। सुषुम्ना का जागृत होना संचित कर्मों का नाश है। सुषुम्ना का जागृत हो जाना हमारे जीवन में लगे हुए पाप के दोषों का नाश है। और सुषुम्ना का जागृत हो जाना हमारे जीवन में एक योग ऊर्जा की उपलब्धि है। इसलिए 24 घंटे में से सिर्फ कुछ ही मिनट ऐसी है जिसमें सुषुम्ना योगिक क्रिया के द्वारा जागृत होता है। योगी जब ध्यान करते हैं तो वो ध्यान सुषुम्ना में होता है। जब योगी का ध्यान परमात्मा में चला जाता है, आत्मा साक्षात्कार की ओर चला जाता है, वो समाधि में चले जाते हैं, तब उसकी सुषुम्ना 24 घंटे जागृत हो जाती है।
और जहां वो 24 घंटे उसकी सुषुम्ना जागृत हो जाए, वहां आत्मा देह से मुक्त हो जाती है। आत्मा की चेतनाएं देह से विदेह में चली जाती है और उस समय पे हमारे शरीर में एक यौगिक ऊर्जा का निर्माण होता है। और जब यौगिक ऊर्जा का निर्माण हो जाए तब हम शिवमय हो जाते हैं, तब हम दूसरों के कल्याण के लिए चेरो इति चेरो आगे बढ़ जाते हैं। तो तभी हमें सृष्टि अपने कुटुंब के समान रखने लगे। इसलिए योगी नित्य ध्यान करते थे और प्रदोष काल में हमारी सुषुम्ना जागृत। प्रदोष का काल अलग अलग रूप से अलग अलग समय पे माना गया है, अलग अलग प्रांत के हिसाब से माना गया है। कई लोग ऐसे मानते हैं कि सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद का 1.5 घंटा वो प्रदोष का है। कई लोग ऐसे मान लेते हैं, कई धारणाएं ऐसी है कि सूर्यास्त के आगे की 3 घड़ी, सूर्यास्त के पीछे की 3 घड़ी, 24 मिनट की 1 घड़ी, तो सूर्यास्त के पहले की 72 मिनट और सूर्यास्त के बाद की 72 मिनट वो प्रदोष का काल है। यानी 144 मिनट में जो समय मिले सूर्यास्त के आगे पीछे का, वो सुषुम्ना की जागृति का समय है। 144 मिनट में सुषुम्ना जागृत होती है, नियत समय तक रहती है, बाद में बंद हो जाती है। जैसे जैसे साधना बढ़े वैसे सुषुम्ना की जागृति का समय और बढ़ जाता है। तो 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद में, सूर्यास्त के 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद, ये पूरा टोटल 144 मिनट का समय वो प्रदोष काल का समय होता है, जहां हमारे दोष नाश हो जाते हैं, जहां हमारे पाप कर्म जहां जल जाते हैं, ऐसा जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय है। जहां हमारे शरीर के कष्ट की पीड़ा, शरीर के पाप वो भी नष्ट हो जाते हैं, मन के पाप नष्ट हो जाते हैं, वाणी के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यौगिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, वैज्ञानिक रूप से भी प्रदोष काल की पूजा महत्वपूर्ण पूजा है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि 144 मिनट में की गई पूजा वो पूरे ब्रह्मांड की पूजा है। यानी एक छोटा सा जीव पूरे ब्रह्मांड को शिव समझ के जहां पूजा कर ले, पूरे शिव के लिंग को जहां ब्रह्मांड समझ के पूजा कर ले, वहां ये ब्रह्मांड की जो पूजा है वह पूजा वो प्रदोष पूजा मानी गई। प्रदोष पूजा में भगवान शिव की आराधना होती है और ऐसे कहा जाता है कि भगवान शिव कैलाश के ऊपर तांडव करते। भगवान शिव की तांडव क्रिया 144 मिनट चलती है और जब भगवान तांडव करते हैं तो बाकी सारे देवी देवता वाद्य और वाजिंत्र बजाते हैं, नृत्य करते हैं। और मैं तो ऐसे मानता हूं सदाशिव 24 घंटे तांडव करते हैं। सदाशिव जब तांडव करते हैं और उनके पैर इस पृथ्वी के ऊपर जब पड़ने लगते हैं, तब जाके यह सृष्टि में ऊर्जा का निर्माण होता है, यह सृष्टि चेतनवंत बनती। एक भी मिनट अगर भगवान शिव का तांडव एक भी मिनट के लिए कहीं ना कहीं आके अटक गया, रुक गया, तो समझो कि सृष्टि का विनाश हो गया। प्रतिशंस चलने वाला तांडव जब चलता है तब तक इस सृष्टि में एक ऐसी ध्वनि निर्माण होती है जहां जीवन बनता है। यानी सृष्टि के उगम से लेके सृष्टि के प्रलय तक शिव अपना तांडव करता है। लेकिन यह 44 मिनट तांडव को अनुभव करने की एक स्थिति बन जाती है जहां हम ओंकार के ध्वनि का अनुभव कर सके, जहां डमरू के ध्वनि का अनुभव कर सके, जहां शंख के नाद का हम अनुभव कर सके। हमारे नाभि में बसा हुआ अनहद नाद जब ये सभी ध्वनि के साथ अंदर बजने लगता है, तब हमारे भीतर की सुषुम्ना जागृत होती है।
तब हम शिवमय हो जाते हैं, तब शिव बन के हम पूरे ब्रह्मांड की सब पूजा करते हैं। और वही पूजा को तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि मन कल्याणकारी शिव बन जाए तब जाके किसी का कल्याण कर सके, ऐसी शक्तियां हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रदोष काल की पूजा जड़ चेतन और मानवीय पदार्थ में भगवान शिव का अनुभव करने की एक पूजा है। और आज आप देखिए कि आज के प्रदोष काल की पूजा तो गुरु प्रदोष, और गुरु प्रदोष को सर्वश्रेष्ठ माना गया। गुरु प्रदोष यानी गुरु ही शिव, गुरु देवो महेश्वर, गुरु ही शिव है, गुरु साक्षात परब्रह्म है। कि शिव से भी कोई समान हो, शिव के साथ कोई समान हो, तो यह जगत में गुरु तत्व है। और प्रदोष काल जब गुरु प्रदोष हो तो सदगुरु और शिव को एक समान, एक रूप मानते हुए हमें पूजा करनी चाहिए। और उसका प्रमाण शिव के चरित्र से और गुरु के चरित्र से हमें मिलता है। हम ऐसे कहते हैं कि शिव कौन है, तो ज्ञान अग्नि जिसमें बसा हुआ है, जिसके तीसरे नेत्र में ज्ञानाग्नि है, वो ज्ञान अग्नि वो ही शिव, ज्ञान अग्नि जिसमें है वो शिव। और गुरु की महिमा क्या है कि गु यानी अंधकार और रु यानी प्रकाश, जिसके आगमन से, जिसके सानिध्य से, जिसके स्पर्श से और जिसके शब्द से अंधकार मिट जाए। और अंधकार कब मिटे, जब ज्ञान आ जाए, प्रकाश आ जाए। कि हमारे जीवन का अज्ञान जिसके ज्ञान के प्रकाश से मिट जाए, वो जीवन को प्रकाशमय करने वाला और अंधकार को मारने वाला कोई तत्व है तो वो गुरु तत्व है। इसलिए गु और रु ये दो शब्दों से बना हुआ, अक्षरों से बना हुआ एक शब्द, जिसे गुरु शब्द कहा गया। और इसलिए कहा कि मंत्र मूलम गुरु वाक्य, कि जहां आप गुरु गुरु बोलते जाइए, जहां गुरु गुरु आप बोले वो भी एक मंत्र है कि प्रकाश, अंधकार से मैं प्रकाश की ओर, यानी प्रकाश आया और अंधकार गया। एक ज्ञान की कल्पना जहां हो जाती है, गुरु शब्द का रटन ही हमारे अंदर ज्ञान जागृत कर देता है। और मैंने कहीं भागवत में पढ़ा था, डोंगरे जी महाराज, परम पूज्य डोंगरे जी महाराज के भागवत में मैंने पढ़ा था कि जब भगवान नरसिंह प्रकट हो गए स्तंभ फाड़ते हुए, और जब उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, तब उनके सांसों में से गुरु गुरु की ध्वनि सुनाई देती थी। ऐसा भागवत में परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने, हिरण्यकश्यपुर को मारने के बाद जो ध्वनि, उनकी सांसें जो चल रही थी, उस श्वास और उच्छ्वास में गुरु शब्द, गुरु 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 करके एक ध्वनि सुनाई दे रहा है। तो उसका अर्थ क्या हो कि भगवान जब संहार लीला करे तो वह संहार लीला भी ज्ञानमयी होती है। और हिरण्यकश्यपुर को मारना यानी अज्ञान को मारना, और वह ज्ञानमयी लीला थी, इसीलिए गुरु शब्द, गुरु की ध्वनि उनकी सांसों से सुनाई दी। तो गुरु स्वरूप होके भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को दर्शन दिए, और शिव स्वरूप बन के हिरण्यकश्यपुर का वध कर दिया। यानी गुरु और शिव एक समान। और इसलिए कहा गया कि शिव रुष्ट है गुरु स्त्राता, गुरु रूठ है कश्चन। कि जहां परमात्मा रूठ जाए वहां गुरु बचा ले सकते हैं, लेकिन जहां गुरु रूठ है वहां परमात्मा भी नहीं बचा। परमात्मा भी कह देता है कि जहां गुरु रूठ जाए वहां मैं भी क्या करूं, अब तुम्हारे जीवन के कर्म अब तुम्हें ही भुगतने हैं। लेकिन आप सोचिए कि गुरु गीता ने गुरु की महिमा गाई, गुरु गीता के द्वारा भगवान शिव ने गुरु की महिमा गाई। भगवान कृष्ण जब गीता को सुनाते हैं तब वो ज्ञान गीता, यानी वो भी एक गुरु की भूमिका। भगवान कृष्ण जब गीता सुनाते हैं और हनुमान जी सुन लेते हैं, तब वो भगवान कृष्ण गुरु की भूमिका में। और इसलिए भगवान शिव को भी ज्ञान गुरु कहा गया है, वैसे गुरु शब्द को ही ज्ञान कहा गया। और इसलिए
गुरु और शिव ये दोनों एक समान। शिव की आप जितनी भी कल्पनाएं करें तो शिव का जो स्वरूप है, रूप है, जिनमें चिर ज्ञान गंगा चंद्रमा, चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा, विषनाग माला कंठमा, नटराज राज, ये अलग अलग कल्पनाएं आदि शंकराचार्य ने भी की कि जटा के ऊपर जटा है शिव के मस्तक पे, जटा में गंगा है, गंगा के ऊपर चंद्रमा है, उनकी ललाट में त्रिपुंड मला हुआ है, दोनों नेत्रों के बाद भी एक ज्ञान का नेत्र है जिसमें काम को दहन कर दिया था, गले में मुंडमाल है और कान में है कुंडल, कि गले में मुंडमाल है और कानों में कुंडल है। उन्होंने व्याधांबर को डाला हुआ है, कैलाश के ऊपर बैठे हुए हैं। ये जो शिव के रूप की कल्पना है उसे आप अगर देखिए तो शिव का रूप एक रूपक के रूप में है, लेकिन जहां क्रियावंत रूप में जहां देखना है वहां गुरु की क्रियाएं शिव के प्रत्येक आभूषणों से एक रूप हो जाती है। हम कहते हैं ना कि शिव ने जटा पहनी है, ये जटा क्या है? शिव की जटा यानी विचारों की जटा है। शिव ने अपनी विचार जटा में पूरे ब्रह्मांड को समाया हुआ है, इसीलिए कहा गया है कि शिव संकल्प, शिव ने समस्त ब्रह्मांड को अपने मन के विचार में रखा है, अपने मन के संसार में रखा है। शिव जब ध्यान धरे तो उसके मन में पूरा संसार है, पूरे संसार का शिव ध्यान करते हैं। इसके लिए शिव की जटा जिसमें संसार को शिव ने समाया है, अपने मन के विचारों में शिव ने जटा के रूप में संसार को समाया है। उस जटा में गंगा है जिसके हम कहते हैं ज्ञान गंगा, जिसे हम कहते हैं उपदेश गंगा। और वह गंगा जब संसार में गुरु की बहती है अपने शिष्य के संसार में, तब शिष्य पावन हो जाता है। आज हम पावन कब होते हैं? भले हम गंगा में स्नान करने चले जाए, नास्ति गंगा सम तीर्थ, ये गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं है, गंगा में स्नान करने से देह की शुद्धि हो जाती है, लेकिन गुरु के उपदेशों में स्नान करने से हमारे मन की शुद्धि हो जाती है, यानी मन शुद्धि के लिए सत्संग जरूरी है। इसलिए आप देखिए कि जब भी आप तीर्थाटन पे जाओ तो क्या करो, तीर्थ में स्नान करना है, भगवान के दर्शन करना है और साधु संतों का सत्संग करना है। जहां तक ये तीन कार्य पूर्ण नहीं होते वहां तक आपका तीर्थाटन निरर्थक है। तीर्थाटन तभी सार्थक होता है, आपकी तीर्थ यात्रा तभी सार्थक होती है जब वहां के तीर्थ में, वहां की नदी में आप स्नान करो, पूरा पूरा स्नान करो। वहां नदी के पास जो भगवान का मंदिर है, जैसे काशी में चले जाओ, गंगा स्नान करो और विश्वेश्वर का दर्शन करो, तो वहां उस तट के ऊपर जो इष्ट देव का मंदिर है उसमें दर्शन करो, तो एक स्नान हो गया शरीर का। दर्शन करने से हमारे ज्ञानेंद्रियों का स्नान होता है, और वहां जाके साधु संतों के साथ भजन करो, सत्संग करो, जिससे हमारा मन के स्नान होता है। यानी सत्संग, स्नान और दर्शन के बिना तीर्थ यात्रा नहीं होती। और इसलिए मैं कई भक्तों को कहता हूं कि कभी भी आप कहीं भी घूमने के लिए जाए, कोई भी तीर्थ में आप चले जाए, भले तीर्थ में जाइए, स्नान कीजिए, वहां जो भी भगवान का मंदिर है उसके दर्शन कीजिए, वहां दान धर्म कीजिए, लेकिन तीर्थ में जाने के बाद सीधे घर न जाए, अपने घर पे न जाए, सीधे गुरु के दरबार में आइए और गुरु के दर्शन कीजिए, और गुरु के द्वारा जो भी आशीर्वाद मिले उसे प्राप्त कर लीजिए। समझ लीजिए कि आपके मन का स्नान उधर हुआ, तब जाके आपकी तीर्थ यात्रा पूर्ण होती है। यानी बिना सत्संग के कभी भी तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं। और इसलिए ये जटा में संसार है, वैसे ही गुरु की जटा में शिष्य का संसार। शिष्य के संसार में जब गुरु की बोध गंगा प्रवाहित होने लगती है, तब वो बोध गंगा में ज्ञान प्राप्ति करके, बोध गंगा में पावन बन के शिष्य अपने जीवन में सत्कर्म की ओर आगे बढ़ जाता है। बिना बोध के
कर्म कौन सा खराब है और कौन सा सही है वो पता नहीं। यानी सदकर्म करने के लिए जीवन में और जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए भी जीवन में गुरु की बोध गंगा चाहिए। यानी शिव की जटा पे गंगा है, गुरु के पास बोध गंगा। देखिए शिव ने अपने गले में मुंडमाल पहनी है, ठीक वैसे ही ये मुंडमाल शिव ने क्यों पहने? कि विविध अलग अलग प्रकार की मति है, अलग अलग प्रकार की मति वाले भक्त शिव को पूछते हैं, लेकिन सबको शिव अपने गले में समान रखते हैं, अपने पास समान रूप से रखते हैं, किसी का भी धिक्कार नहीं करते। ठीक वैसे ही गुरु के पास अलग अलग मति वाले भक्त आ जाए, कोई रजोगुणी हो, कोई तमोगुणी हो, कोई सत्वगुणी हो, अलग अलग वृत्तियों वाले भक्त भी आ जाए, फिर भी गुरु के सामने सब समान होते हैं। गुरु सभी शिष्य को अपने हृदय में धर लेते हैं, इसलिए शिव ने मुंडमाल पहनी है। ठीक वैसे ही गुरु ने भी सभी शिष्यों को अपने हृदय में समाये हुए रखा। अब देखिए कि भगवान शिव के पास त्रिशूल है और साथ में डमरू भी है। त्रिशूल दुष्टों का संहार करने के लिए होता है और डमरू की ध्वनि से दुष्ट विचारों का संहार हो जाता है। ठीक वैसे गुरु के ज्ञान से त्रयीशूल निर्मूलनम, कि गुरु के ज्ञान से रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण का विनाश होता है, निर्मूलन हो जाता है और हमें तत्वगुण प्राप्त होता है। भक्त का रजोगुण चला जाता है गुरु के ज्ञान, गुरु के दर्शन करने से, गुरु का स्मरण करने से हमारे अंदर के रजोगुण नाश हो जाते हैं, हमारे अंदर के तमोगुण नाश हो जाते हैं, हमारा सत्वगुण भी चला जाता है, विलीन हो जाता है तत्वगुण के अंदर, और हमें तत्वगुण प्राप्त होता है, जिससे हम हमारी दृष्टि से जड़ और चेतन में शिव को देख सकते। शिव का डमरू बजता है तो डमरू की ध्वनि से विचार, गलत विचार नष्ट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही सदगुरु अपने मुख से जब कोई स्तुति करे, अपने मुख से प्रार्थना करे, या गुरु जब भजन करे, तो उनके मुख से भजन सुनने के बाद हमारे अंदर के भी दुष्ट विचार नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने जो गीता सुनाई, वो गीता सुनाई नहीं, गीता गाई है, इसलिए कृष्ण को गीताकार कहा गया है, गीता का गायन करने वाला कहा गया। नारद जी भी अपने हाथ में तंबूरा लेके घूमते हैं, तो नारायण नारायण बोलते नहीं, वो नारायण नारायण गाते हैं। ठीक वैसे ही गुरु जो भी परमेश्वर की स्तुति करे उसे गायन ही कहा जाता है। गुरु वक्ता नहीं, गुरु गायक। परमेश्वर के गुणों को गाने वाला गायक, यानी गुरु के मुख से जब आप गायन सुनो, परमात्मा की स्तुति सुनो, कुछ बोध सुन लो, तो वह स्वर डमरू के स्वर है, जिससे हमारे खराब विचार जिससे नष्ट हो जाए। सदगुरु ने अपनी तीसरी आंख, वो ज्ञानाग्नि, और ज्ञानाग्नि हमारे अंदर के काम को जला देती है। जैसे शिव ने अपने त्रिलोचन खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए, ठीक वैसे ही हमारे अंदर जब काम वासना पैदा हो और जब हम गुरु सदगुरु के सामने जाए, उनके दर्शन करें, और जब हमें और विचार से बोध मिले, तो गुरु की ज्ञान दृष्टि से, गुरु की दिव्य दृष्टि से हमारे अंदर के काम नष्ट हो जाते हैं, हमारा कामाग्नि नष्ट हो जाता है। इसलिए गुरु का त्रिलोचन वो ज्ञान लोचन है। ज्ञानाग्नि है सर्व कर्माणी, कि ज्ञान अग्नि वो सर्व कर्म को जला देती है। ज्ञानाग्नि है सर्व कर्माणी है भस्म सात कुर्यते तथा, या गीता ने कहा कि ज्ञान अग्नि में हमारे सभी कर्म भस्म सात हो जाते हैं। यानी जब गुरु का ज्ञान लोचन जब खुल जाता है, तब हमारे अंदर के जितने भी काम है वो सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे शिव ने गले में नाग पहने रखा है, वह नाग जहां जहां कुछ हो वह नाग डस लेता है, दुष्टों को डसने का काम करता है। ठीक वैसे ही सदगुरु भुजंगराज है। भुजंग यानी भुज यानी हाथ, अंग,
जब शिष्य सदगुरु के चरण में चला जाए तो सदगुरु उसके साथी बन जाते हैं। भुज अंग, भुज यानी हाथ और अंग यानी हमारा अवयव। शिव के गले में जो नाग है उसे भुजंग कहते हैं। भुजंग का काम है शिव के कार्य में सहयोग करना। जो दुष्ट है उसे डसना, धर्म के कार्य में सहयोग करना। ठीक वैसे हम जब सदगुरु के चरणों में चले जाए तब सदगुरु भुजंग बन जाते हैं, हमारे साथी बन जाते हैं, हमारा एक अवयव बन जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन की सभी अवस्थाओं में, सुख की हो, दुख की हो, आनंद की हो, मुक्ति की हो या मोक्ष की हो, हमारा साथी संगाती सदगुरु बन जाता है। और इसलिए मैंने अंतिम गुरुवार पे कहा था और मीरा ने भी कहा था कि सदगुरु है खेवनहारा जो लगाए नैया भव पार, कि हमारा साथी बन जाता है, हमारे दुखों का साथी बन जाता है, हमारे सुखों का साथी बन जाता है, हमारी मुक्ति का माध्यम बन जाता है, हमारे मोक्ष का कारण बन जाता है। और इसीलिए सदगुरु को कहा, शिव के गले का नाग यानी सदगुरु हमारा एक अंग बन जाता है। सदगुरु ने अपने, जैसे शिव ने अपने अंग पर भस्म रमाई है और वो मसान में निवास करते हैं, उसका अर्थ ये होगा कि भस्म रमाने का अर्थ कि सभी वासनाओं से शिव मुक्त है, सभी वासनाओं से शिव विरक्त है। शिव ने स्वयं भस्म के रूप में वैराग धारण कर लिया है। उनके पास मन के कोई विकार जा नहीं सकते, मन की वासनाएं जा नहीं सकती। शिव का स्मरण करो तो मन निराकारी हो जाता है। और शिव श्मशान में निवास कर, श्मशान यानी जहां एकांत हो, ऐसा स्थान जिसे श्मशान। ठीक सदगुरु भी नित्य श्मशान में निवास करते। सदगुरु जब ध्यान में रहते हैं, सदगुरु जहां रहते हैं वहां श्मशान होता है। वहां कोई अपने भीतर की वासना लेके नहीं आ सकता। शिष्य कुछ भी मन में रख के आए, लेकिन जहां गुरु बैठे हैं वहां अगर शिष्य चले जाए तो वहां वो मन से शून्य हो जाता है। मैंने कई भक्तों को देखा है कि मन में बहुत विचार लेके आ जाते हैं, लेकिन जब दर्शन के लिए आए उतने समय वो शून्य हो जाता है और बाहर जाने के बाद बोलते हैं मैंने तो इतना सोच के रखा था, मैं कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी मैं पूछ नहीं पाया। ये क्या है कि जहां गुरु बैठे हैं वहां आप आ जाओ तो वहां विचार शून्य हो जाते थे। यानी जहां गुरु है वहां श्मशान, यानी वहां शून्य है, वहां अवकाश है, वहां पूर्ण स्थिति है। इसीलिए वहां जाने वाला भक्त भी पूर्ण हो जाता है, शून्य हो जाता है। और गुरु ने भी अपने शरीर पे भस्म रमा के, भस्म रमाना यानी संसार की सभी वासनाओं को जला देना, उसे कहा जाता है भस्म रमा। सभी कामनाओं को जिसने जला दी है, सभी वासनाओं को जिसने जला दी है, जो संसार में रहते हुए भी संसार से जो मुक्त रहते हैं, ऐसी जिसकी क्रिया है वो है सदगुरु। इसलिए जब भी आप सदगुरु के पास जाओ तब आपको परमेश्वर के पास पहुंचने का मार्ग मिलेगा। भौतिक संपदा प्राप्त करने का मार्ग नहीं है, परमेश्वर को प्राप्त करने की संपदा प्राप्त करने का जो मार्ग है वो मार्ग होता है सदगुरु का शरण। और इसलिए गुरु और शिव ये दोनों एक समान। गुरु प्रदोष में शिव और गुरु को एक रूप करें, या गुरु के स्वरूप में ही शिव को मानते हुए उनकी पूजा करें। गुरु का पादुका पूजन कर ले, शिवलिंग ना हो तो पादुका पूजन कर ले, शिवलिंग हो तो शिवलिंग में ही सदगुरु के स्वरूप को देख के अगर आप प्रदोष काल में पूजा करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे दुख दूर हो जाए, हमारे आने वाले जितने भी जीवन में आने वाले अवरोध है वो गुरु की दिव्य दृष्टि से नष्ट हो जाए। प्रदोष काल की एक, गुरु प्रदोष की एक कथा है कि एक समय पे इंद्र राजा स्वर्ग में अपनी अमरापुरी में बैठे थे। वहां नाचगान हो रहा था, उनकी स्तुति हो रही थी, साथ में सभी देवगण बैठे थे। उसी समय पे गुरु बृहस्पति उस सभा में पधारा। इंद्र ने देखा और इंद्र ने सोचा कि मैं तो देवाधिदेव हूं, पूरी सृष्टि मेरी पूजा करती है, वेद मेरी स्तुति करते हैं, सभी देवगण मेरी सेवा करते हैं,
समस्त सृष्टि को चलाने वाला ही मैं इंद्र हूं। तो गुरु के आने से मैं क्यों उठूं? अगर मैं उठूंगा तो गुरु का स्थान बड़ा हो जाएगा। इसलिए मुझे तो बैठे ही रहना है, भले बृहस्पति आए मगर मैं देवाधिदेव हूं, मैं क्यों उठूं? यानी गुरु बृहस्पति आए मगर इंद्र उठे नहीं, देखा मगर देखने के बाद भी उन्होंने न देखा, अनदेखा कर दिया। न इंद्र उठे, न किसी देवगण को उसने उठने दिया। यह देखते हुए गुरु को अपमान लगा। और स्वाभाविक है कि जहां गुरु आए वहां हमें खड़े हो जाना चाहिए, जहां गुरु आए वहां हमें आदर देना चाहिए। नास्ति गुरु संपूज्यो, कि गुरु के बिना कोई पूज्य नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि आचार्य देवो भव, कि गुरु की सही पूजा ही गुरु का आदर है। कि जब गुरु आए और आप उठ ना पाओ, अपना स्थान छोड़ ना पाओ, तो आपको स्थान का अभिमान है। जब गुरु आए और आप हाथ न जोड़ पाओ, तो समझो कि आपको अपने कर्तव्य कर्म का अभिमान है कि मैं कुछ हूं, ऐसा आपको अभिमान है। जब गुरु आ जाए तब आप झुक ना सको, तो आप समझ लो कि आपने जो प्रतिष्ठा पाई है उस प्रतिष्ठा का आपको अभिमान है। यानी गुरु पूजनीय होता है, और गुरु का आदर ही जब गुरु आए और आप खड़े हो जाओ, वह पूजा ही गुरु की आदर पूजा। इसलिए गुरु बृहस्पति आए, इंद्र ने अनदेखा कर दिया, किसी को उठने नहीं दिया। गुरु समय तक खड़े रहे, काफी समय तक किसी ने सत्कार नहीं किया, न किसी ने स्थान दिया। गुरु को बहुत दुख हुआ, गुरु बृहस्पति को, कि मैं देवताओं का गुरु हूं, मेरी कृपा से ही इंद्र देवाधिदेव है, और आज अभिमान में आते हुए इंद्र ने मेरी अवहेलना की है, इंद्र ने मेरा अपमान किया, तो मुझे यहां अमरापुरी में आके करना क्या है? गुरु रूठ गए। और मैंने पहले ही कहा कि गुरु रूठे कश्चन, गुरु रूठे, और गुरु वन में जाके तप करने के लिए बैठ गए। देवताओं के पास गुरु का सानिध्य ही खत्म हो गया। जब गुरु ही नहीं रहे तो ज्ञान कहां बचा? देवता ज्ञान के मार्गों से भटकने लगे, देवता ज्ञान के मार्ग से भटकने लगे, यज्ञ याग आदि बंद हुए। जब गुरु ने ही देवताओं के लिए प्रार्थना करना बंद कर दिया, कृपा करना बंद कर दिया, तो यज्ञ याग आदि बंद हुए। यज्ञ याग आदि जैसे बंद हुए, वैसे देवताओं की शक्तियां क्षीण हुई। और ये सब दानवों ने देखा, और दानवों ने जब ये सब देख लिया, तब शुक्राचार्यों को कहा गया कि गुरु बृहस्पति स्वर्ग से चले गए हैं, देवताओं का पुण्य क्षीण होने लगा है। और तब शुक्राचार्य के मार्गदर्शन अनुसार राक्षसों ने, और उसमें भी वत्रासुर ने जाके इंद्र के राज्य ऊपर आक्रमण कर दिया। दानवों ने इंद्र के राज्य के ऊपर आक्रमण किया, और पूरा स्वर्ग था वो दानवों ने ले लिया। अब जब दानवों ने स्वर्ग ले लिया, तब देवताओं को पता चला कि बिना गुरु के हमारा जीवन नष्ट हो गया है। गुरु रूठने से हमें यह महादशा जीवन में आई है, कठोर दशा हमारे जीवन में आई है, हम रंक हो चुके हैं। सबने जाके ब्रह्मा जी की स्तुति की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बृहस्पति तो रूठ के चले गए हैं, अब किसी को आपको गुरु बनाना पड़ेगा, वो आएंगे नहीं, किसी और को, उनके जैसे ही किसी और को गुरु बनाना पड़ेगा जो ब्रह्मनिष्ठ हो। और इसीलिए आप त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्राह्मण है, उनके पास जाइए, उन्हें गुरु बनाइए, और यज्ञ याग आदि का मार्गदर्शन देके फिर से अपने जीवन का पुण्य प्राप्त करें। त्वष्टा ऋषि थे, उनका पुत्र था विश्वरूप। विश्वरूप के पास गए, विश्वरूप ने गुरुपद स्वीकारा, और विश्वरूप देवताओं के गुरु बने। विश्वरूप के गुरु बनने के बाद ही तुरंत वापस इंद्र को अपना साम्राज्य प्राप्त हुआ। अब इंद्र को साम्राज्य प्राप्त हुआ,
विश्वरूप यज्ञ याग आदि करवाते थे, क्योंकि गुरु हो तो ही यज्ञ हो। हर एक यज्ञ में गुरु का एक स्थान होता है। वो नित्य नियम से मार्गदर्शन देते थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, उसकी सभी क्रियाएं ब्रह्म के अर्पण थी, और यज्ञ याग आदि का ज्ञान भी वो देते थे। उनके यज्ञ से देवताओं का बल बढ़ने लगा। लेकिन जो विश्वरूप थे, उनकी माता यानी त्वष्टा की पत्नी, विश्वरूप की माता, वो असुर थी, यानी असुर कुल से थी। तो उसका अर्थ यह हुआ कि त्वष्टा तो ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी पत्नी विश्वरूप की माता वो असुर कुल से थी। यानी स्वाभाविक ही विश्वरूप जो भी करते थे उसमें असुर कुल के प्रति अहोभाव रहता था। यानी वो यज्ञ तो करते थे, लेकिन यज्ञ का आधा भाग अपने आप ही दानवों के पक्ष में चला जाता। उनके मन में एक ही लगता था कि मेरी मां तो असुर कुल से और मैं ब्राह्मण कुल से, यानी ब्राह्मण होने के नाते देवताओं को भी मिले तो मेरी मां असुर कुल से है, तो एक यज्ञ का भाग असुर कुल को भी मिले। यानी वो दोनों को समान रखते थे। यानी 100% जो भाग मिलना चाहिए उसमें से 50% असुरों के पास जाता। तो धीरे 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 असुरों का बल भी बढ़ने लगा और फिर से असुर बलवान हो गया। ये बात जैसे इंद्र को पता चली कि विश्वरूप स्वाभाविक रूप से उसके एक अंदर का एक मन असुरों की तरफ है और उनका यज्ञ का भाग स्वाभाविक असुरों की ओर चला जा रहा है, तब इंद्र ने विश्वरूप तलवार लेके आए और जहां विश्वरूप वेद पाठ कर रहे थे वहां आके उनकी गर्दन में तलवार मारी और धड़ से सिर को अलग कर दिया, यानी ब्रह्म हत्या हुई। अब यह बात जैसे त्वष्टा ऋषि को पता चली कि मेरे पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया है, पहले गुरु बनाया और बाद में मार दिया है, तब त्वष्टा ने यज्ञ किया और इंद्र को मारे ऐसा एक पुत्र वो यज्ञ में से पैदा है। अब इंद्र को मारने वाला पुत्र जैसे यज्ञ करते गए उसमें से एक पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र का नाम था वत्रासुर। वत्रासुर इंद्र को मारने के लिए स्वर्ग में चला गया। इंद्र का साम्राज्य उसने ले लिया। वापस इंद्र और बाकी सब देवगण वो वापस बिना राज्य के हो गए, रंक बने। गुरु बनाए, गुरु को भी मारा, जो गुरु थे उनको निकाल दिया। अब वापस वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, अब आप जाए और नारायण से मिले। भगवान नारायण अगर आपको कुछ आज्ञा दे तो आपके जीवन में वापस कुछ हो सकता है। भगवान नारायण के पास गए, भगवान नारायण को प्रार्थना की। तब भगवान नारायण ने कहा कि सृष्टि के ऊपर एक दधीची ऋषि करके एक ऋषि है जो अनेक सालों से भगवान शिव की आराधना करते हैं। उनकी आराधना करने से लाखों वर्षों का तप हुआ है और वो तप से उनकी जो अस्थियां हैं वो वज्र के समान हुई है। तो आप जाइए और दधीची ऋषि से मिलिए और दधीची ऋषि के पास जाके उनके अस्थि आप ले लीजिए। उस अस्थि में से जो अस्त्र बनेगा उस अस्त्र से आप वत्रासुर का संहार करें। इंद्र गया दधीची के पास। दधीची के सामने दो हाथ जोड़ के खड़े रहे इंद्र, और मुनि दधीची को कहा कि मैं इंद्र राजा हूं, आपसे मांगने के लिए आया। दधीची ऋषि ने कहा कि इंद्र के पास किस चीज की कमी हो सकती है, फिर भी मेरे द्वार पे आया है, बोलो बताओ देवादिदेव क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके शरीर की अस्थियां चाहिए, मुझे वत्रासुर का वध करना। तब दधीची ने कहा कि मेरी अस्थियां मांगने का अर्थ क्या हुआ तुझे पता है? तो बोले हाँ पता है, कि मेरी अस्थियां मांगने का अर्थ हुआ कि तुम मुझसे मेरा जीवन मांगने के लिए आए और मुझसे तुम जीवन मांग रहे हो, बदले में मुझे मृत्यु मिलेगा। कौन ऐसा होगा जो अपना जीवन दे दे और मृत्यु को ग्रहण करे? तब इंद्र ने प्रार्थना की कि समस्त मानव जात के लिए, धर्म के लिए आपको अपना जीवन देना पड़ेगा, आपको आपकी अस्थियां देनी पड़ेगी।
दधीचि ऋषि वो गुरु की भूमिका में थे और उन्होंने कहा कि अगर धर्म के लिए, अगर संस्कृति के लिए मुझे मेरा जीवन देना पड़े तो मैं देने के लिए तैयार। दधीचि ऋषि ने कहा कि मेरी एक इच्छा है, पूरी कर दो। इंद्र ने कहा क्या? मुझे तीर्थ स्नान करना है। भगवान इंद्र ने सभी तीर्थों को वही बुला लिया और ऋषि को तीर्थ स्नान करवाया। ऋषि ने तीर्थ स्नान कर दिया। बाद में दधीचि ने कहा कि मैं ब्रह्म में मेरा समर्पण करने के लिए तैयार हूं। मैं समाधि में चला जाता हूं, समाधि के द्वारा मैं मेरी आत्मा को ब्रह्म में अर्पण कर दूंगा। लेकिन उस समय गायों को भेजी जाए और गाय आए और मेरे शरीर की त्वचा को अपनी जीभ से चाटने लगे, और जैसे जैसे गाय मेरी त्वचा को चाटेगी वैसे वैसे मेरी त्वचा निकलती जाएगी और मेरी जो अस्थि है वो आप लेके चले जाए, मगर बिना गाय के स्पर्श के मैं ये अस्थि आपको दूं। और उसके बाद वह ब्रह्म में अपना अर्पण कर दिया। समाधि लेते हुए अपने जीवन को ब्रह्म में समर्पित किया। गाय को वहां छोड़ा गया। वन की गाय आई, सब चाटने लगी। जैसे जैसे गाय ने चाटना शुरू किया वैसे वैसे उनकी त्वचा वहां से अदृश्य होने लगी और पूरा कंकाल वहां पड़ा रहा। इंद्र ने उस कंकाल को उठाया, उसमें से एक वज्र बनाया और उस वज्र का उपयोग करते हुए, हाथ में लेते हुए वस्त्रासुर के सामने युद्ध किया। इंद्र और वस्त्रासुर का युद्ध चला। किसी भी रूप से वस्त्रासुर तो मर नहीं रहा था, लेकिन जो वज्र बना था उस वज्र से, अस्थियों का वज्र जो था दधीचि ऋषि का, उससे वस्त्रासुर पर प्रहार किया गया और वहां वस्त्रासुर की मुक्ति हुई। अभी आप सोचेंगे कि वज्र, अस्थियों से वज्र कैसे बना? तो जब आप अपने जीवन में अनुष्ठान करो तो अनुष्ठान के द्वारा, मंत्रों के जाप के द्वारा, न्यास करने से, न्यास विधियां करने से आपके शरीर के रोम रोम में परमात्मा की शक्ति का स्थापन हो जाता है। न्यास का अर्थ यही होता है कि स्थापन करना। जब आप अपने जीवन में साधना में एकाग्र हो जाओ तो आपके शरीर में परमात्मा की शक्तियां स्थापन होने लगे। आप कोई माला करो और वो माला पे आप जाप करो तो आपकी माला में परमात्मा के नाम की शक्ति है, वो अभिमंत्रित हो जाती है, वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। आप जिस आसन पे बैठ के साधना करो वो आसन, वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, उसमें शक्तियां आके बस जाती है। आप किसी मूर्ति में ध्यान करो तो वो मूर्ति में भी प्राण संचार हो जाता है। इसीलिए अपनी माला किसी को देनी नहीं चाहिए, इसीलिए अपना आसन किसी को देना नहीं चाहिए। अपनी शक्तियां उसमें छिपी हुई है। अगर आप किसी को दे दो तो उसे आपकी शक्ति मिल जाएगी, लेकिन उसकी जो अशक्तियां है, आसक्तियां, वो आपकी वस्तु में आ जाएगी और वो आसक्ति आ जाने से आपके अंदर उसमें जो विकार थे वो आपके अंदर आ जाए। इसीलिए अगर मालाएं प्राण प्रतिष्ठित हो सकती है, आसन प्राण प्रतिष्ठित हो सकता है, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो सकती है, तो ये शरीर में भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। और लाखों लाखों वर्षों तक दधीचि ऋषि ने तप किया था, लाखों वर्षों, और वो लाखों वर्षों तप करने के बाद उनकी हड्डियों में, उनके अस्थियों में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी भगवान के नाम, और इसलिए वो वज्र समान बन गया। तो उसका उपयोग कर रहे और करा, और जब वत्रासुर को मारा गया तो वत्रासुर की मृत्यु नहीं हुई, वत्रासुर की भी मृत्यु। और यह कथा जो है वो गुरु प्रदोष की कथा है, क्योंकि गुरु के अपमान से हुआ। और बाद में सदगुरु को लाया जाता है, बृहस्पति को बुलाया जाता है और बृहस्पति की पूजा की जाती है, और पुनः बृहस्पति को पद पे स्थापन किया जाता है, क्षमा मांगी जाती है, तब जाके वत्रासुर का वध होता है। यानी वत्रासुर को मारने के पहले गुरु की स्थापना वापस होती है और उसके बाद वत्रासुर का वध होता है। तो आप देखिए कि हरि रूठे गुरु स्त्राता,
गुरु रूठे कश्चन, कि जिसके जीवन में गुरु ही चले जाए, गुरु ही जिसका अस्वीकार कर ले, उसका स्वीकार परमात्मा भी नहीं करेगा। इसलिए गुरु का प्रदोष, गुरु और शिव को एक समान मान के उसकी पूजा करने का यह प्रदोष है। गुरु की रूठने से इंद्र राजा से रंक हुआ और गुरु को मना लेने के बाद इंद्र रंक से राजा हुआ, वापस इंद्र को साम्राज्य प्राप्त हुआ गुरु की कृपा से। आए हुए अवरोध नष्ट हो गए, जीवन में आया हुआ दुख समाप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार प्रदोष काल में गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है, या फिर शिव और गुरु ये दोनों एक समान है, ऐसा भाव एकत्व करने से, एकाग्र करने से, प्रदोष काल में गुरु और शिव को एकरूप भाव से पूजा करने से, गुरु और शिव की एकरूप भाव से पूजा करने से हमारे जीवन में अवरोध नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आज के प्रदोष में, आज का प्रदोष गुरु प्रदोष, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, कि आज के दिन प्रदोष काल में गुरु की पूजा करें। हमने भी यहाँ पूजा की ही है और वही पूजा जो मैं करता हूँ वो मेरी पूजा में सद्गुरु और शिव एक समान ही होते हैं। और मेरी पूजा तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरे जितने भी भक्त हैं, जो भी भक्त जहाँ जहाँ विश्व के कोने कोने में रहते हैं, उन सबकी तंदुरुस्ती के लिए, सुरक्षा के लिए और समृद्धि के लिए मेरी पूजा का संकल्प होता है। और मैंने आज यही पूजा गुरु प्रदोष के दिन गुरु दरबार में की है। इसलिए आप भी गुरु प्रदोष में पूजा करते रहे और शिव और गुरु को समान बना के अपने जीवन में गुरु कृपा, शिव कृपा प्राप्त करें। ऐसा ही मेरा आशीर्वाद आप सबके लिए आज के दिन पे है। तो हम सब गुरु प्रदोष के पावन पर्व के प्रसंग पर शिव और गुरु को एक रूप देखते हुए 25 बार गुरु मंत्र का जाप करें और मानसिक रूप से किया हुआ जाप शिव और सद्गुरु एक रूप है ऐसे समझते हुए गुरु के चरणों में अर्पित करें। तो हम 25 बार गुरु प्रदोष के पर्व के प्रसंग पर गुरु मंत्र का जाप करें। गोरक्ष ज्वालन्नर चर्पटाश्च अड़भंग कानीफ मच्छिन्द्राज्य चौरंगी रेवाणक भर्तुहरि सज्ञा भूम्याम्ब भ्रूणनुनाथ सिद्ध। जय जय मच्छिन्द्र समर्थ, जय जय मच्छिन्द्र समर्थ, जय जय मच्छिन्द्र समर्थ। साधनाथ महाराज की, आदिनाथ शंकर भगवान की। आज के गुरु प्रदोष के दिन सद्गुरु और शिव को एक समान मन में रखते हुए हमने गुरु प्रदोष पे शिव और गुरु दोनों की आराधना की। और जब शिव और गुरु की कृपा हो जाए तो हमारा जीवन धन्य बन जाता है, हमारा भाग्य परम भाग्य में बदल जाता है और हमारे जीवन में शांति और सलामती हमें प्राप्त होगी। पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस की महामारी के चलते हम सब अपने घर बैठे ही भक्ति भाव कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर भक्तों ने घर में बैठे भी नवनाथ चरित्र का पारायण,
गुरु महिमा का पारायण, गुरु मंत्र का पारायण किया है। पूज्य गुरुदेव की 121 नामावली का पारायण भी किया है। और ऐसे ही सब साथ में मिलके जब आप अनुष्ठान करो तो स्वाभाविक है, यत्र तत्र सर्वत्र सदगुरु की और भगवान शिव की कृपा यहां भी है, सब जगह पे है और आपके घर में भी है। और उनकी कृपा से ही हम सभी नाथ भक्त आज सुखी भी है और सुरक्षित भी। अनलॉक 1 शुरू हुआ है और गुरुवार पे आने की सबको छूट भी मिली है। आज भी सब भक्त गुरुवार पे आए, यहां दर्शन भी किए और बहुत ही शिष्ट में दोपहर को 3:30 से 6:30 के बजे 6:30 के टाइम पे सबको दर्शन का लाभ मिला है। तो मैं तो ऐसे ही कहूंगा कि नियमों को जो भी बनाया गया है वह सब नियमों का पालन करें और नियमों का पालन करते हुए गुरुवार को दोपहर को 3:30 से 6:30 के बीच में आए, दर्शन करें और अपने गुरुवार का आप लाभ ले सकते हैं। भंडारे में अभी हमने कुछ निर्णय लिया नहीं, योग्य गाइडलाइन आई नहीं है, तो जो भंडारे का महाप्रसाद है उसको अभी हमने बंद ही रखा है। लेकिन जैसे ही गाइडलाइन मिलेगी वैसे भंडारे का महाप्रसाद भी शुरू होगा। लेकिन तब तक दोपहर गुरुवार 3:30 से 6:30 के बीच में आते रहे, दर्शन करें और दर्शन से ही अपने जीवन में गुरु की कृपा प्राप्त करें कुछ समय के लिए। दूसरी बात, यह हफ्ते में भी कई भक्तों ने अपना योगदान ऑनलाइन से गुरु दरबार में दिया है। सरलाबेन प्रवीण भाई पटेल कुमकोत और 11,000, सविताबेन गुलाब भाई पटेल आनवेर खुद 11,000, चंचलबेन नगीन भाई पटेल खरौली 5,000, पार्वतीबेन अमृत भाई पटेल 5,000, वृंदाबेन परमार सूरत 501, मनीषाबेन सोलंकी 501 सूरत से, तन्वीबेन दादावाला बिल्ली मोरा 501, धनजीभाई सेंगार अहमदाबाद से 1,001, श्री आदर्श भाई जीतूभाई राठौड़ मुंबई से 1,000, श्री तरलिकाबेन 40,000। ये सब भंडारे में योगदान दिया गया है, क्योंकि भंडारे का कार्य कुछ न कुछ रूप से तो चलते ही रहता है। भले हमने फूड पैकेट का कार्य थोड़े समय के लिए बंद किया है, लेकिन हर गुरुवार को फुटपाथ पर जो जरूरतमंदों के लिए महाप्रसाद जाता था हमारे भंडारे का, वो आज भी चालू है। 150 से 150 जितने पैकेट आज भी गुरुवार पे हर गुरुवार के नियम के हिसाब से आज भी फुटपाथ के ऊपर जरूरतमंदों को तक हम पहुंचाते हैं। वो हमारी रेगुलर सेवा आज भी चालू रखी है। कई भक्तों ने योगदान दिया है। जिन्होंने योगदान दिया, परमेश्वर की कृपा उनके जीवन में बनी रहे, सब सुखी रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। जतिन भाई नवा बिल्ली मोरा 10 किलो शक्कर और 10 किलो कंसार गुरु पूर्णिमा के लिए यह भंडारे में दिया है, सीधे अन्न के रूप में। शंकर भाई चौधरी डोलवन से एक तेल का डिब्बा गुरु पूर्णिमा के लिए भंडारे में दिया गया है। पार्वतीबेन कुकड़ा आहवा से 10 किलो कठोल चना जो भी भंडारे में गुरु पूर्णिमा के लिए दिया गया है। तो जो भक्त सीधे अन्न के रूप में या आर्थिक रूप में सहयोग कर रहे हैं, भगवान शिव को, सदगुरु को प्रार्थना करता हूं सबको सुरक्षित रखे और सबके जीवन सुखी करे। 19 का गुरुवार, 26, 18 का गुरुवार आज का, 26 का और 2 जुलाई का गुरुवार, ये तीनों गुरुवार दर्शन के लिए खुले रखे गए हैं। दोपहर 3:30 से 6:30 के बीच में कर सकते हैं दर्शन आके। जिन जिन भक्तों को, जिन जिन मंडलों को मना किया है, वो मेहरबानी करके अपने घर पे ही रहे। और जैसे ही गुरु पूर्णिमा के लिए कुछ नई गाइडलाइन आ जाएगी, वैसे वो गाइडलाइन भी मैं डिक्लेयर करूंगा। गुरु पूर्णिमा के लिए अलग तरह से कुछ आयोजन किया जाएगा और उस हिसाब से गुरु पूर्णिमा का त्यौहार भी मनाया जाएगा। बस घर में बैठे हुए आज के प्रदोष के दिन भगवान को प्रार्थना करें और शिव संकल्प से प्रार्थना करें कि पूरे विश्व में फैली हुई कोरोना महामारी
वो अब नष्ट हो जाए, सभी भक्तों और सभी भक्तों के, सभी प्राणी मात्रों के, सृष्टि के सभी जन जन के जीव सुरक्षित हो और सब सुखी हो। सबकी कामना के लिए घर बैठे ही आप गुरु प्रदोष में प्रार्थना करें, ऐसा मेरा आप सबको अनुरोध है। बस आज के प्रदोष के गुरुवार पर मेरा इतना ही आपको सूचन है। घर में बैठे और सबकी समष्टि के कल्याण की आप कामना करें। जय उद्धव, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश।